हेलो। आपको पिछले 9 वीडियोस में मैंने आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, बहुत फार्मूले बताए। उन्हीं फार्मूलों में एक आपको मैंने बताया था पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जब यदि फंक्शन आपका पीरियोडिक था तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है, और उसका देखते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम पीरियोडिक फंक्शन के बेसिस पर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन ft is equal to t is less than a and 2a minus t a is less than t is less than 2a। एंड अब हम इसका देखते हैं, ये फंक्शन हमारा पीरियोडिक है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये हो गया आपका 0 से a में इस तरीके से डिफाइंड है, a से 2a इस तरीके से डिफाइंड है, और इसका जो आपका पीरियड है दैट इज 2a, 0 से 2a। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन ft इज इक्वल टू पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म from 0 to capital T is the period of that function, that is 2a e to power minus of st ft dt upon 1 minus e to power minus of st का मतलब 2as t is 2a। further this can be written as, अब यहां देखें दिस ft फंक्शन जो आपको गिवन है वो दो पार्ट में डिफाइंड है, 0 से a एंड a से 2a। सो इट विल बी 0 to a e टू पावर माइनस ऑफ st इंटू ft के जगह हो जाएगा t एंड dt प्लस a to 2a e टू पावर माइनस ऑफ st 2a minus t dt upon 1 minus e to power minus of 2as। so this be equal to 1 upon 1 minus e to power minus of 2as, integrate this one by part। so first function taken as t into e to power minus of st upon minus of s minus integration differentiation of first function t is 1, so e to power minus of st upon minus of s dt। इंटीग्रेशन की लिमिट आपकी हो जाएगी 0 टू a प्लस 2a minus t e to power minus of st upon minus of s minus integration minus of 1 e to power minus of st upon minus of s minus of s इंटीग्रेशन की लिमिट a टू 2a। दिस भी इक्वल टू 1 upon 1 minus e to power minus of 2as एंड इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ t e to power minus of st by s minus minus plus, and when we integrate e to power minus of st, this be e to power minus of st upon s square
0 to a प्लस प्लस आपका ये हो जाएगा 2a माइनस टी माइनस पहले आ गया e टू पावर माइनस ऑफ एस टी अपॉन माइनस ऑफ एस, माइनस पहले आ गया आपका। सो यहां ध्यान दें माइनस माइनस प्लस, this be minus, and when we integrate e to power minus of st dt with respect to t, then we have plus, by this be plus, again minus, and when we integrate this be plus, plus e to power minus of st upon s square a to 2a, this will be equal to 1 minus e to power minus of 2as. Substitute the limit. When we substitute the upper limit, we have minus a e to power minus of as by s minus e to power minus of as upon s square. Then यहां देखें आप, फिर when we substitute the lower limit, when we substitute the lower limit, then first term will be 0, because when we substitute the lower limit t equal to 0, then this will be disappear. Again, when we substitute t equal to 0 in this place, lower limit minus minus plus plus 1 upon s square 1 upon s square. फर्दर अब आप यहां पर आ जाएं, तो यहां जब आपने सब्स्टिट्यूट किया t equal to 2a upper limit, so it will be 0, so first term will be 0, so finish. Then we substitute here, so it will be e to power minus of 2as upon s square Further, when we substitute this lower limit, so minus minus plus, and when we substitute a, so plus a e to power minus of as upon s. All right, and minus minus e to power minus as upon s square okay, yes. So this will be cancel out, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, इट विल बी कैंसिल आउट। बचा क्या आपको, ध्यान दें यहां पर, तो e टू पावर माइनस as अपॉन s स्क्वायर, it will be again negative, e to power minus as upon s square, so this will be 2 times, minus 2 times e to power minus of as upon s square plus 1 upon s square plus e to power minus of 2s upon s square. So s square will be common, 1 upon s square 1 minus e to power minus of 2as. It can be written as e to power minus of 2as minus 2 times e to power minus of as plus 1 plus 1. So this can be written as 1 upon s square 1 minus e to power minus of 2as, and this can be written as 1 minus e to power minus of as का होल स्क्वायर, e to power minus of as अपॉन इसका होल स्क्वायर। सो अब आपका रिजल्ट ये आ गया,
तो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन दिस। कभी कभी इसी लाप्लास ट्रांसफॉर्म को ये कहता है, आपको प्रूफ करने को कुछ दे देता है कि सो दैट दिस बी इक्वल टू दिस मच। तो हम ये काम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? जैसे इसी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को, जो फंक्शन आपका दिया हुआ है, इसी को आपको दे देगा कि यू हैव टू प्रूव दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर tan hyperbolic as by 2, tan hyperbolic as by 2 मैं दे सकता है। तो कुछ भी नहीं, नथिंग, आपका काम तो यहां हो चुका था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने ये इवेलुएट कर लिया था, बट आपने ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल तो लिया है, लेकिन आपको प्रूफ जब ये करना है तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं भाई? तो देखें, यहां से हम चलते हैं इस रिजल्ट को लेके। हम उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 1 अपॉन एस स्क्वायर 1 माइनस ई टू पावर माइनस ऑफ 2as 1 माइनस ई टू पावर माइनस ऑफ as का होल स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज एस स्क्वायर 1 माइनस ई टू पावर माइनस ऑफ as इंटू 1 प्लस ई टू पावर माइनस ऑफ as 1 माइनस ई टू पावर माइनस ऑफ as का होल स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b, दिस भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो इसमें a की पावर कैंसिल आउट हो गया, आपका मिल गया 1 अपॉन एस स्क्वायर 1 माइनस ई टू पावर माइनस ऑफ as अपॉन 1 प्लस ई टू पावर माइनस ऑफ as। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, आपने पढ़ा भी है, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं भाई? हाउ, कैसे ये संभव है? तो आप इसको ध्यान दें, इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 अपॉन एस स्क्वायर ई टू पावर माइनस ऑफ as बाई 2 माइनस ई टू पावर माइनस as बाई 2 अपॉन ई टू पावर माइनस as बाई 2 प्लस ई टू पावर माइनस as बाई 2। कैसे देखें? यहां से यदि ई टू पावर माइनस as बाई 2 कॉमन कर ले आप, कॉमन, तो यहां 1 हो जाएगा, माइनस ई टू पावर माइनस as बाई 2 अपॉन ई टू पावर प्लस सॉरी ई टू पावर माइनस as बाई 2, यहां से हमने कॉमन किया as बाई 2, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस ई टू पावर माइनस as बाई 2 अपॉन ई टू पावर as बाई 2, वो पावर फिर ऊपर चला जाएगा, तो ई टू पावर माइनस as बाई 2 हो जाएगा, और दोनों पावर जब ऐड करोगे तो ई टू पावर as मिल जाएगा। एक बार फिर से समझ लें, इसी को हमने इस फॉर्म में लिखा है, कैसे? तो ई टू पावर as बाई 2 यहां से आप कॉमन कर लें, कॉमन जब करेंगे तो न्यूमिनेटर में आपका बचेगा 1 माइनस ई टू पावर माइनस as बाई 2 अपॉन ई टू पावर as बाई 2। जब डिनोमिनेटर वाला as बाई 2 आप न्यूमिनेटर में ले जाओगे तो इट विल बी a टू पावर माइनस as बाई 2 माइनस as बाई 2, तो दोनों सम हो जाएगा, तो as बाई 2 ऐसे as बाई 2 सम करेंगे तो as मिल जाएगा। पहला पार्ट हो गया। नीचे वाले में भी से e टू पावर as बाई 2 कॉमन कर लो, तो 1 प्लस फिर वही चीज आ जाएगी, e टू पावर as बाई 2 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लीजिए, इसमें भी e टू पावर as बाई 2 का प्रोडक्ट कर दीजिए, इसमें भी e टू पावर as बाई 2 का प्रोडक्ट कर दें, ऊपर नीचे दोनों में ही e टू पावर as बाई 2 का प्रोडक्ट कर दो, आपका ये मिल गया। सो
1/s²। अब आपको ये फार्मूला पता है कि साइन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू e टू पावर थीटा माइनस e टू पावर माइनस थीटा अपॉन 2। सो आपका ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक as/2 अपॉन, इसी तरीके से इसको लिख सकते हो cos हाइपरबोलिक as/2। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/s tan hyperbolic as/2। So it will be proved now 1/s² tan hyperbolic as/2। इस तरीके से आपको ये देखा, कभी क्वेश्चन भाई दो तरीकों से पूछे जा सकते थे और उन दोनों ही तरीकों में आप फिर इस तरीके से उसको कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म तो यही हो चुका था, लेकिन यदि कभी बाई चांस आपको प्रूफ करने को पूछ दिया जाए तो इन दैट केस आप इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो क्वेश्चन दो तरीके से इसे पूछ सकता है। ft दे दिया, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर दिया कि प्रूफ दैट दिस मच, देन आपको जो उसने प्रूफ कहा है वो करना पड़ेगा। अदरवाइज यदि ऐसा नहीं दिया है कि वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा है तो सो आप इतना ये कर लेंगे तो यहीं पर आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा, इसके आगे करने की जरूरत नहीं। करते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं करते हैं तब भी कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अब इस पार्ट में आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम, ये कन्वोल्यूशन थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस कन्वोल्यूशन थ्योरम से फिर हम आगे चल के लाप्लास इनवर्स जब कैलकुलेट करेंगे तो वहां इस कन्वोल्यूशन थ्योरम का मैक्सिमम यूज है। अब वो कन्वोल्यूशन थ्योरम होता क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं चीजों को अब यहां बताया जाएगा। एक कन्वोल्यूशन थ्योरम आप क्या है, कैसे आप उनको ऑब्टेन करेंगे। तो पहली चीज आपको हम ये बता दें कि कन्वोल्यूशन फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होता है। कन्वोल्यूशन फंक्शन हम किस तरीके से डिफाइंड करते हैं। तो सपोज f एंड g, सपोज f and gt be the two function of t. Suppose f and g be the two function of t, then एक स्पेशल प्रोडक्ट जिसको हम यहां कन्वोल्यूशन कहते हैं, दिखने में तो ये प्रोडक्ट है बट इट विल बी प्रोडक्ट नहीं है, इसका नाम देते हैं इस स्टार का, इस ऑपरेशन का वो नाम है आपका कन्वोल्यूशन। f convolution g is defined as ft fu g of t minus u du। क्लियर? f ये t फंक्शन है, दिस इज आल्सो t फंक्शन, इन दोनों का एक स्पेशल प्रोडक्ट जो कि डिफाइंड है इस फॉर्म का 0 से t fu gt minus u du is known as convolution, is known as convolution। सो कन्वोल्यूशन का मतलब क्लियर हो गया कि दो फंक्शन का एक स्पेशल प्रोडक्ट जिसका नाम दिया गया कन्वोल्यूशन, और वो डिफाइंड कैसे है, वो ऑपरेशन डिफाइंड कैसे है, वो इन दिस फॉर्म ft है तो प्रोडक्ट लेकिन एक स्पेशल प्रोडक्ट gt, दिस भी 0 to 2 fu gt minus u du। अब इस कन्वोल्यूशन फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यही आपका कन्वोल्यूशन थ्योरम है। सो कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है, ये तो मैंने आपको बताया कि कन्वोल्यूशन क्या है।
कन्वोल्यूशन। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द कन्वोल्यूशन फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द कन्वोल्यूशन फंक्शन gt, this be Laplace transform of 0 से t fu g of t minus u du, this be equal to Laplace transform of ft into Laplace transform of gt. So this be, इसको हमने fs नाम दे दिया, इसको हमने gs नाम दे दिया। यानी दो फंक्शन f और g के कन्वोल्यूशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म is equal to Laplace transform of the first function into Laplace transform of the second function। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार एग्जाम में पूछा है, और फिर इसका हम जब इनवर्स निकालेंगे तो इस कन्वोल्यूशन थ्योरम का इनवर्स निकालने में बहुत ज्यादा यूज है। अब हम बात करते हैं इस कन्वोल्यूशन थ्योरम के प्रूफ की। हाउ इट विल बी प्रूफ, कैसे ये थ्योरम प्रूफ किया जाएगा? तो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन एफ टी, ये आपको पता है। दिस बी द डेफिनेशन 0 to infinity e to power minus of st ft dt। क्लियर? ये आपका होता है। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन, convolution of two function f convolution g, which is defined as 0 से t fu g of t minus u du, this this be equal to 0 to infinity 0 to t, एफ टी की जगह यह पूरा फंक्शन आ जाएगा fu g of t minus u du dt। ऑलराइट, आपने ये पूरा इसको इस फॉर्म में लिख दिया, 0 से इंफिनिटी 0 से t fu g t minus u du dt। अब यहां पर देखें, हमको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। हमने चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऑलरेडी पढ़ा है, हम उस चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। और जब चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का आप यूज कर लेंगे तो आपको ये du और dt को इंटरचेंज करना पड़ेगा, du एंड dt को इंटरचेंज करना पड़ेगा। पहले आपको du के dt के रिस्पेक्ट में करना होगा, एंड देन यू हैव टू विद रिस्पेक्ट टू du। पहले अभी ये du दिख रहा है, तो हमको जब चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का हम यूज करेंगे, तो बाय यूजिंग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, बाय यूजिंग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आपको ये पहले भी मैंने बताया है कि जब ये कांस्टेंट होता तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वेरिएबल है, तो उस केस में आपको ये थोड़ा सा चेंजिंग आपको करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 0 से इंफिनिटी fu du इंटीग्रेशन u से इंफिनिटी e टू पावर माइनस ऑफ st g ऑफ t माइनस u dt। g t माइनस u dt। अब ये चीज जब आया तब हम क्या करें भाई? लेट t माइनस u
is equal to x. T minus u is equal to x. So dt equal to dx. dx. So यहां जब आप इसको हम लिख सकते हैं 0 से इंफिनिटी एफ यू डी यू integration. When we substitute the lower limit, so it will be 0, and when we substitute the upper limit, this will be infinity. E to power s minus s, in place of t it will be x plus u g of x dx. So this be equal to 0 to infinity fu du इंटू, ध्यान दें आप इसको आप लिख सकते हैं 0 से इंफिनिटी माइनस ऑफ एस एक्स माइनस ऑफ एस यू जी ऑफ एक्स डी एक्स. सो दिस बी इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एफ यू डी यू. यहां आप देखते हैं इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में है, सो ई टू पावर माइनस ऑफ एस यू is the constant with this integration, so it can be written as e to power minus of su 0 to infinity e to power minus of s g of x dx. इतने पार्ट को आप ध्यान दें तो जो आपके किसी भी फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डिफिनीशन है e टू पावर 0 टू इंफिनिटी e टू पावर माइनस ऑफ एस टी एफ टी डी टी, तो जहां जहां t है इस फंक्शन में वहां x है, और जहां f है वहां पर आपका g है. तो हम उसी को कंपैरिजन के थ्रू हम इसको लिख सकते हैं 0 से इंफिनिटी एस यू एफ यू डी यू इंटू जी एक्स कैपिटल जी, जैसे हम कैपिटल एफ एस लिख लेते हैं इसी को. यहां g फंक्शन था तो हमने लिख लिया gs. अब आप इसको ध्यान दें इस पार्ट को, तो ये पार्ट ठीक उसी डिफिनीशन के बेसिस पर है. जहां जहां आपका t है यहां पर क्या है u, सो इट विल बी fs इंटू gs. तो ये हमारा कन्वोल्यूशन थ्योरम प्रूफ हो गया, और इस कन्वोल्यूशन थ्योरम के बेसिस पर हम आगे चल के इसका इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे. हाउ वी फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो दिस विल बी द कन्वोल्यूशन थ्योरम. अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट फंक्शन इज नोन एज इंपल्स फंक्शन और डिराक डेल्टा फंक्शन. उसके भी जैसे आपका यूनिट स्टेप फंक्शन है, ठीक उसी तरीके से ये डिराक डेल्टा फंक्शन है, डिराक डेल्टा फंक्शन या यूनिट इंपल्स फंक्शन. यूनिट इंपल्स फंक्शन और डिराक डेल्टा फंक्शन. यूनिट इंपल्स फंक्शन, या इसी को हम डिराक डेल्टा फंक्शन. यही आपका डिराक डेल्टा फंक्शन है. वो किस तरीके से डिफाइंड होता है भाई? तो डिराक डेल्टा फंक्शन इज डिफाइंड बाय t माइनस 1 इज इक्वल टू 1 upon epsilon a is less than t is less than a plus epsilon and 0 otherwise. Where epsilon tends to 0, जब epsilon tends to 0 करेगा, then 0 से इंफिनिटी डिराक डेल्टा फंक्शन dt is equal to 1.
0 से इन्फिनिटी t minus 1 dt, this be equal to 1, this implies to 1. सो डिराक डेल्टा फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ठीक उसी तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा जैसे यूनिट स्टेप फंक्शन का कैलकुलेट होता है, एंड दिस बी e टू पावर माइनस ऑफ as. सो यूनिट स्टेप फंक्शन में आपने देखा था कि यूनिट स्टेप फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म था दैट इज e टू पावर माइनस as बाई s. डिराक डेल्टा फंक्शन का e टू पावर माइनस as, और इस तरीके से आपका जो है ये चीजें कंप्लीट हो गई, कन्वोल्यूशन थ्योरम, पीरियोडिक फंक्शन, डिराक डेल्टा एंड डिराक डेल्टा, कन्वोल्यूशन थ्योरम, यूनिट स्टेप फंक्शन एंड पीरियोडिक फंक्शन. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में. ओके, थैंक यू.